Hello friends, today we are going to learn our first lecture in chapter number 2 for the foundation in standard 8. In this chapter, we are going to start our second portion of this chapter. The name of the chapter is Dimensional Analysis and Laws of Motion. Laws of motion. So first of all, what is motion? मोशन क्या होती है? अगर कोई आपको ये पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई दूसरी चीज पहली चीज के सापेक्ष में समय के साथ अपने स्थान में बदलाव करती है तो वो चीज ये चीज के सापेक्ष में मोशन कर रही है, ऐसा आप बोल सकते हैं. I am not interested about motion. I am interested about laws of motion. Who gave the laws for the motion? Newton. See, we know Newton with gravitational force, right? A person who discovered the gravitational law is Newton. But at the same time, he discovered another few rules about motion. And that laws of motion that we are going to learn in this lecture. See, this is Newton. Actually, this is the just an image, just a cartoon type picture of Newton. But see, there is an apple in his hand, and we know that this is the thing like a gravitational force, like कि आपको ये पता था कि किसी पेड़ के नीचे न्यूटन बैठा हुआ है, ऊपर से कोई एक सफरजन नीचे गिर रहा है, तो न्यूटन को दिमाग में ये आया कि भाई ये सफरजन ऊपर से नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब कि अर्थ के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है. और अर्थ के पास ऐसा क्या है, तो कि अर्थ के पास कोई एक ऐसा फोर्स है जो सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचता हुआ रखता है. तो वो फोर्स क्या है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. ऐसा सब हमने थोड़ा बहुत जाना हुआ है न्यूटन के बारे में, लेकिन सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ही हम उसको याद नहीं करते, उसके अलावा उसने बहुत सारे अलग अलग लॉज भी दिए हुए हैं. कभी कभी दिमाग में ये आता होगा ना कि इसके बाजू में एप्पल गिरा, उसकी वजह कुछ बड़ा वाला पेड़ के नीचे वो बैठा होता और वो पूरा का पूरा फल ही उसके ऊपर गिर गया होता न्यूटन के ऊपर, तो सारी झंझट ही मिट जाती हमारी. पर ठीक है, बहुत कुछ आज की सारी जो चीज़ें बनी हुई है उसमें ये सारी थियोरी जो इसने दी हुई है न्यूटन ने, उसका बहुत सारा उपयोग करके ही हमने अलग अलग इन्वेंशन किए हुए हमारे साइंटिस्टों ने. ठीक है, हमको तो पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन के बारे में. मेनली देयर आर 3 लॉज फॉर द मोशन. सी, फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, right? Physics is divided into 2 parts. First is kinematics and another one is dynamics. What is the difference between kinematics and dynamics? In kinematics, you are talking about the motion. You are talking about the motion, but you are not talking about the cause behind that motion. मोशन किससे हुई उसके बारे में आप कुछ भी चर्चाएं नहीं करते, आप सिर्फ मोशन हो रही है वो मोशन के बारे में ही चर्चा करते हैं. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोशन के बारे में तो आप चर्चा करते ही है, साथ साथ उसके कोज के पीछे वो मोशन के पीछे क्या रीजन है, उसके कोज क्या क्या है, वो सारी चीजें भी आप डायनेमिक्स के अंदर कवर कर लेते हैं. तो मेरे को आज ये बताना है आपको कि देखो, सपोज आई हैव वन ऑब्जेक्ट इन माय हैंड एंड आई वांट दैट दिस ऑब्जेक्ट गेट्स सम मोशन. सो व्हाट शुड आई डू? I can request this ball that please ball get some motion.
Please yaar, why are you steady? Please move. No, he is not moving. Why it is not moving? Because something is lack. And what is lack? That is force. If you give a gentle push or some higher push to this ball, it means after getting that push from outside, this ball can move. Suppose I want to throw this ball in upward direction. So I can request this ball, please ball, please go upside. No, it is not fair. You have to go upside. મારા હમ છે તને પ્લીઝ ઉપર જા. એલા ભાઈ, તમે ગમે એટલી રિક્વેસ્ટ કરશો અને ગમે એના હમ આપશો, એ કે ઉપર થોડો વયો જશે. Something is required. And what is that something? That is force. If you give a force in upward direction, means this object went upside. Means force is necessary for the motion. Some object is rolling and you want to stop that. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ आ रहा है और आपको उसे स्टॉप करना है, तो आप उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि प्लीज भैया स्टॉप हो जा, आगे देख पूरा गड्ढा हुआ है, तू उसमें गिर जाएगा. ऐसा कुछ नहीं कर सकते. अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो आपको सामने की उसकी मोशन के सामने अपोजिट डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो स्टॉप होगा. तो इससे हमको क्या पता चलता है? हमको पता चलता है कि either your object is steady or in motion, और अगर आपको उसको स्टेडी में से मोशन में लाना है या तो मोशन में से स्टेडी करना है, तो आपको बाहर से कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा. वो कुछ ना कुछ क्या होगा? वो कुछ ना कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. Means some external force is needed for an object to make it accelerated or make it motion from state or make it rest from the motion. तो जो ऑब्जेक्ट स्थिर है उसको गति में लाने के लिए, या तो कोई ऑब्जेक्ट गति में है उसको स्थिर करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना ही होगा, तब जाके ही ऐसा हो सकता है. सपोज कोई ऑब्जेक्ट गति करता हुआ आ रहा है, आपको उसको स्टॉप नहीं करना है, आपको उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है. तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है तो आप उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में या तो किसी एंगल पे थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. सपोज आपको किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज करना है, तब भी आपको बाहर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. मींस फोर्स बहुत जरूरी है स्थिर ऑब्जेक्ट को गति में लाने के लिए, गति वाले ऑब्जेक्ट को स्थिर करने के लिए, ऑब्जेक्ट की दिशा चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट का आकार चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट की साइज चेंज करने के लिए. और ये फोर्स हम अपनी रोजिंदा जीवन में बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं. कैसे? तो आप सोचो ऐसा कि आप सो रहे हो बेड पे, ब्लैंकेट आपके ऊपर है, आप उठे तो आपको ब्लैंकेट हटाना पड़ेगा, तो ब्लैंकेट को हटाने के लिए फोर्स किया, फिर उठे, फिर दरवाजा खोलने के लिए आपने फोर्स लगाया, फिर सपोज आप ब्रश करने जाते हैं तो टूथपेस्ट में से मतलब ट्यूब में से टूथपेस्ट निकालने के लिए आप फोर्स कर रहे हो, फिर स्कूल बैग, तो स्कूल बैग को उठाकर आप अपने कंधे पे रखते हो. तो हर छोटी बड़ी चीजों के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ता है, और वो फोर्स की वजह से ही मोशन आता है. ठीक है? फोर्स क्या है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और पुल दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन from rest or make it rest from the motion. Sometimes
Sometimes force can change the direction, sometimes it change the shape or size. Means force has a tendency that it can change the state of an object. मतलब स्थिर ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्थिर कर सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका आकार बदल सकता है, उसका कद बदल सकता है. तो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा पुश है या तो ऐसा पुल है जिससे ये सारी चीजें हो सकती है. ठीक है, वन बाय वन हम सारी चीजें देखते हैं कि आपके मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है. सी इंट्रोडक्शन 2.15 मीन्स 2.14 तक हमने डायमेंशनल एनालिसिस में सारे थियरी पोर्शन देख लिए हैं. यहाँ पे सीधा स्टार्ट 2.15 से हो रहा है. सी वी यूज फोर्स ऑल द टाइम. वी यूज फोर्स टू ओपन अ डोर. वी यूज फोर्स टू पिक अप द स्कूल बैग. वी यूज फोर्स टू ब्रश आवर टीथ. वी यूज फोर्स टू स्क्वीज आउट टूथपेस्ट फ्रॉम अ ट्यूब एंड सो ऑन. एवरीवेयर we use force, right? Force is not an object which can be seen. Force can be experienced or measured. आप फोर्स को देख नहीं सकते, आप उसको मेजर कर सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं. We can experience the force of pull of earth on us and can measure it by a weight machine. In the preceding chapter, we saw that uniform motion needs the concept of velocity alone, whereas non-uniform motion requires the concept of acceleration in addition so far. We have not asked, so far, we have not asked the question as to what governs the motion or bodies. In this chapter, we turn to this basic question. मीन्स कि अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें सिर्फ आप मोशन के बारे में ही बात करते थे, लेकिन आपके ऑब्जेक्ट के पास वो मोशन आई कहां से, उसके बारे में आप कोई बात नहीं करते. ऑब्जेक्ट के पास मोशन आई कहां से, उसके पीछे का कॉज क्या है? उसके पीछे का कॉज है फोर्स. फोर्स लगने की वजह से आपके ऑब्जेक्ट के पास मोशन आई. So in this chapter we will discuss about the force, right, and the laws of motion. See, let us first guess the answer based on our common experience. To move a football at rest, टेस्ट नहीं, यहाँ पे रेस्ट होगा. क्या है वो, टीचर को सभी जगह पे टेस्ट ही दिखाई देता है तो कहीं पे भी टेस्ट ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, रेस्ट. टू मूव अ फुटबॉल एट रेस्ट. अगर कोई फुटबॉल रेस्ट है तो उसको मोशन में लाने के लिए आपको किक तो मारना ही पड़ेगा, तभी जाके वो मोशन में आएगा. वो किक क्या है? वो एक टाइप का फोर्स है. टू थ्रो अ स्टोन अपवर्ड्स, वन हैज टू गिव एन अपवर्ड पुश. अगर कोई ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगाएगा तो ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर नहीं जाएगा. Clearly some external agency is needed to provide force to move a body from rest. अगर बॉडी को मूव करना है तो आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा. वो कुछ ना कुछ क्या है? वो कुछ ना कुछ है एक्सटर्नल फोर्स. In short, a force is required to put a stationary body in motion or stop moving body, and some external agency is needed to provide this force. The external agency may or may not be in contact with the body. See, हर बार क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गति करता हुआ आता है और उसको स्टॉप करना है तो आपको उसको कांटेक्ट करके ही फोर्स लगाना पड़ता है. ऐसा जरूरी नहीं है. कभी कभार आप उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं होते हो, फिर भी वो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है, उसको मोशन में लाना है तो आपको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा. हाँ, फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो फोर्स वो ऑब्जेक्ट को टच हो ऐसा जरूरी नहीं है. कैसे, मैं आपको बताता हूं. सपोज मेरे पास ये एक मैग्नेट है. सपोज देखो अभी एक ये रेस्ट पे है. सपोज मेरे को मोशन में लाना है इसको, तो मैं ये दूसरा पार्ट आगे ले जाऊं. देखो 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 देखो, देखो ये શું થયું? ये ऑब्जेक्ट
इसके साथ कांटेक्ट में नहीं था, फिर भी इसने उसको अपनी ओर खींच लिया। मतलब कि ये स्टेडी था, उसके पास मोशन आ गई, वो मोशन आने के लिए फोर्स लगा, लेकिन वो फोर्स इसके साथ टच नहीं हुआ। सो वी कैन डिवाइड द फोर्स इन टू वेज। सम फोर्सेस आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस, सम फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आगे जाके हम इस तरह से फोर्सेस को डिवाइड भी कर सकते हैं। सी, some forces are contact type forces, some forces are non contact forces। कांटेक्ट फोर्स में क्या रहता है? कांटेक्ट फोर्स में टू ऑब्जेक्ट्स के बीच कांटेक्ट जरूरी रहता है, कांटेक्ट जरूरी रहता है। यहां पे क्या रहता है? कांटेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे कोई कांटेक्ट जरूरी नहीं है। इसके एग्जांपल में बता सकता हूं आपको। सपोज मेरे पास ये बॉल है और ये बॉल को मेरे को नीचे की ओर जाने देना है। जस्ट मैं इसको ऐसे फ्री फॉल करा दूं तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। आपने देखा कि भाई कुछ अर्थ में से कोई हाथ बाहर आया, बॉल को नीचे की ओर ले गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब कि बिना किसी कांटेक्ट से भी अर्थ वो बॉल को अपनी ओर खींच लेती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किस टाइप का फोर्स है? वो इस टाइप का फोर्स है कि जिसमें कांटेक्ट जरूरी नहीं है। सेम वे मैग्नेटिक फोर्स भी ऐसा है, जिसमें भी कांटेक्ट जरूरी नहीं है। आप इलेक्ट्रिक फोर्स को भी बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऐसा फोर्स है जिसमें दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच फोर्स लगता है, उसमें भी किसी टाइप का कांटेक्ट जरूरी नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। अगर आपको किसी कार्ट को पुल करना हो, या तो आपको फुटबॉल को किक करना हो, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं जिसमें आपको कांटेक्ट करना जरूरी है। यहां पे कांटेक्ट करना जरूरी नहीं है। तो इस तरह से हम फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। साथ साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि फोर्स के यूनिट क्या रहते हैं। पहले तो फोर्स क्या है? फोर्स वन टाइप ऑफ पुश और पुल। फोर्स कुछ नहीं है, एक टाइप का पुश है या तो पुल है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको मैं पूछूं कि आपको मम्मी पसंद है कि पापा पसंद है, आप क्या बोलोगे? हमको दोनों पसंद है। दोनों पसंद है मतलब क्या? F मीन्स फादर, फादर इज इक्वल टू माँ, फादर इज इक्वल टू माँ। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। यहां पे F स्टैंड्स फॉर फोर्स, नॉट फॉर द फादर, राइट? मास m स्टैंड्स फॉर mass and a means acceleration. F is equal to ma. This is the formula for the force. See, अगर मैं ये बोलता हूं कि फोर्स जीरो लग रहा है, फोर्स जीरो लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो लग रहा है। ऑब्जेक्ट है मतलब उसके पास मास तो होगा ही ना, मास थोड़ी ना जीरो होगा। अगर फोर्स जीरो है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब आ सकता है? अगर एक्सेलरेशन जीरो हो तो। अगर मैं ये बोलूं कि फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो आपको समझना क्या है? आपको समझना यह है कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा?
जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा तो न्यूमरेटर 0 क्या कब होगा? जब V2 और V1 सेम होगे तो मीन्स व्हेन V2 इज इक्वल टू V1 मीन्स कि व्हेन V इज कांस्टेंट, तब जाके आप ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर मैं ये बोलूं कि फोर्स 0 है तो आपको समझना क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तब आपको क्या समझना है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हुआ तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट स्टेडी है। एक्सेलरेशन 0 के दो मतलब है, या तो ऑब्जेक्ट आपका स्टेडी है या तो ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो अगर मैं आगे से फोर्स 0 बोलूं उसका मतलब होगा एक्सेलरेशन 0 है, या तो ऑब्जेक्ट स्टेडी है या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है। फोर्स के यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। सी मास इन एसआई सिस्टम, mass can be measured in kilogram. Acceleration is measured in meter per second square. So kilogram meter per second square, this is the unit, this is the unit of force. See, 1 न्यूटन फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, 1 न्यूटन। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स वो क्या है, 1 डाइन। और ये दोनों जो है वो है एब्सोल्यूट यूनिट्स। दो टाइप्स के यूनिट्स रहते हैं, कौन कौन से, एक है एब्सोल्यूट यूनिट्स रहता है फोर्स का, दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट्स में क्या रहता है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स में क्या रहता है, किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, ऐसा कुछ यूनिट रहता है। ये दोनों है वो एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या रहता है, सीजीएस यूनिट रहता है ग्राम वेट। हेलो, किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं। सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 1 किलोग्राम है, मेरे को बाहर से कुछ फोर्स लगाना है, वो फोर्स कितना लगाओ, सपोज कि 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं इतना फोर्स लगाता हूं कि उस ऑब्जेक्ट के पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन आ जाए। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट, इस 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन मेरे को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना है, तब फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना, 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू 1 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये करने के लिए जितना फोर्स जरूरी है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। सो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सीजीएस यूनिट चाहिए आपको, सीजीएस यूनिट, तो जैसे न्यूटन है वैसे यहां पे क्या आ जाएगा, डाइन आ जाएगा। फिर किलोग्राम नहीं रहेगा, किलोग्राम का क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। मीटर नहीं रहेगा, मीटर का क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचे तो सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। हेलो,
CGS मतलब क्या कि लेंथ को आप सेंटीमीटर में मेजर करते हो, मास को आप ग्राम में मेजर करते हो और समय को आप सेकंड में मेजर करते हो। ऐसी कुछ सिस्टम, उसको बोलते हैं CGS सिस्टम। यहां पे मैंने किलोग्राम का ग्राम किया, मीटर का सेंटीमीटर किया और सेकंड तो सेकंड में था ही। तो यह आंसर क्या आया? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो, यहां पे एक डाइन नहीं, सॉरी, ये एक न्यूटन ही रहेगा, माय मिस्टेक। यहां पे देखो आप, एक न्यूटन को ही मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? एक न्यूटन को। किलोग्राम का ग्राम किया, मीटर का सेंटीमीटर किया, यहां पे सेकेंड स्क्वायर आ गया। सो एक न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आपने क्या देखा? एक न्यूटन इज इक्वल टू क्या है? न्यूटन को आप ये भी बोल सकते हैं ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह पे ग्राम, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर और समय की जगह पे सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आप उसको डाइन बोलते हैं। अगर यूनिट किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर तो आप उसको न्यूटन बोलते हैं। तो एक न्यूटन को आप 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ऐसा रिलेशन भी आप बना सकते हैं। इन शॉर्ट आपके पास 3 रिलेशन आए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। क्लियर? न्यूटन को आप किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, डाइन को आप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं और एक न्यूटन को आप लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। ओके, ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में मैं बता दूं। इसमें क्या रहता है? इसमें भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट रहता है, उस ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम रहता है। आपको उसको पुश करना है, ऐसा फोर्स लगाओ कि वो ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नहीं आए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए। आपका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 1 किलोग्राम, हेलो, एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपका बना 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फोर्स है 1 किलोग्राम वेट। 1 किलोग्राम वेट मींस 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये भी बोल सकते हैं कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को तो आप न्यूटन भी बोल सकते हैं। हेलो, तो 2 यूनिट्स है, फोर्स के 2 यूनिट्स है। पहले तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू m है। फोर्स के 2 यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना है और उसका मास 1 किलोग्राम लेना है। यहाँ पे मास तो 1 किलोग्राम ही लेना है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करना है। तब जाके ऐसे 2 यूनिट्स आपके पास आते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूं, आप देखिए। सी, पहले तो क्या आया? फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप और साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स से क्या क्या हो सकता है? फोर्स से ये सारी चीजें हो सकती है। ऑब्जेक्ट स्थिर है तो वो गति में आ सकता है, गति वाला ऑब्जेक्ट स्थिर हो सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसकी साइज चेंज हो सकती है। डायमेंशनल फॉर्मूला तो आप अपने हिसाब से बना लोगे क्योंकि आगे का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। ये देखो, 2 यूनिट्स है, एक है एब्सोल्यूट यूनिट, एक है ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में क्या रहता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या करना है? 1 न्यूटन फोर्स इज दैट मच फोर्स which produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of mass 1 किलोग्राम। 1 किलो वाले बॉडी के अंदर आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना हो तब आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 1 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा।
और यहां से आपने रिलेशन भी बना लिया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। यहां पे क्या है, यूनिट है किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम यहां पे क्या है, देखो आप, द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स ऑन एसआई किलोग्राम, ऑन एसआई इज किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स, इट इज दैट मच फोर्स। अगर कोई ये बोलता है कि 1 किलोग्राम वेट का फोर्स लग रहा है, मतलब कि कैसा फोर्स, मतलब कि दैट मच फोर्स which produces an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in a body of 1 किलोग्राम। 1 किलो वाले ऑब्जेक्ट के अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर आपको एक्सेलरेशन लाना हो तो उसका मतलब ये होता है कि 9.8 न्यूटन जितना फोर्स उसके अंदर लग रहा है। किलोग्राम वेट का मतलब क्या हुआ, 9.8 न्यूटन। ऐसे दो दो टाइप्स के यूनिट क्यों है, देखो आप, the gravitational units of force are used to express weight of a body। अगर आपको किसी बॉडी का वेट दिखाना हो तो आप किलोग्राम वेट में बोलोगे, क्योंकि आसान रहता है। 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसका वेट क्या होगा, सी मास इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, लेकिन उसका वेट क्या रहता है, वेट रहता है mg, मतलब कि 5 किलो वाला ऑब्जेक्ट और उसका एक्सेलरेशन कितना, g जितना। g मतलब क्या, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये बोल सकते हैं कि उसका वेट क्या होगा, 5 किलोग्राम वेट। ये मल्टीप्लिकेशन ना करना पड़े तो अगर किसी ने ऐसा लिखा है कि 5 किलोग्राम वेट, मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ग्रेविटी का, 5 किलोग्राम वेट, तो ये आसान रहता है। या तो आप मल्टीप्लिकेशन करके आंसर न्यूटन में बोलो, या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर न्यूटन में बोलो, और न्यूटन में नहीं बोलना हो तो आप 5 किलोग्राम वेट ऐसा ही बोल दो। 5 किलो का ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम वेट, 7 किलो का ऑब्जेक्ट का वेट क्या हुआ, 7 किलोग्राम वेट। तो ये आसान रहता है, तब जाके ऐसे 2 यूनिट्स बने हैं इसके अंदर। देखो आप, 1 ग्राम वेट, ग्राम वेट है तो ग्राम वेट, वेट मतलब क्या, नहीं देखो मैं कर दूं आपको यहां पे, 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट को 1 ग्राम वेट को आप ऐसे लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं 9.8 मीटर का सेंटीमीटर करना हो तो 100 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, नीचे सेकेंड स्क्वायर। सो 9.8 इंटू 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको आप ऐसा बोल सकते हैं ना, 980, इसको बोल सकते हैं डाइन। तो 1 ग्राम वेट को आप क्या लिख सकते हैं, 980 डाइन। 1 ग्राम वेट को आप लिख सकते हैं 980 डाइन। Remember that in all numerical problems we have to use only the absolute units of force. Gravitational units are the practical units. They have to be converted into absolute units in all problem. आपको ग्रेविटेशनल यूनिट्स किधर भी यूज ही नहीं करना है, आपको यूज क्या करना है, एब्सोल्यूट यूनिट ही यूज करना है। तो कुछ भी दिया हुआ हो, आखिर में आपको आपका आंसर किस में बोलना है, आखिर में आपको आपका आंसर न्यूटन में या तो डाइन में ही देना रहता है। और मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम के अंदर आपको आपका आंसर फोर्स का न्यूटन के अंदर ही लिखना होता है। तो अगर कहीं पे भी एब्सोल्यूट यूनिट दी है, मतलब कि किलोग्राम वेट दिया है या तो ग्राम वेट दिया है, तो आपको उसको कन्वर्ट किस में करना होगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा। और कैसे कन्वर्ट होता है ये सब मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सी इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स से क्या क्या इफेक्ट आ सकती है। कितनी बार मैंने आज के लेक्चर के दौरान बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो उसको मोशन में लाने के लिए फोर्स लगता है। मोशन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टेडी करना हो
तब फोर्स लगता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये डायरेक्शन में जा रहा है और मुझे उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी हो, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैं उसको फोर्स लगाऊं तो वो ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज करनी तो वो ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है तो मेरे को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसकी स्पीड कम हो सकती है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड कम करने के लिए, आपके पास स्टेडी ऑब्जेक्ट हो तो उसको गति में लाने के लिए, गति वाला ऑब्जेक्ट हो तो उसको स्टेडी करने के लिए, या फिर उसका आकार और कद बदलने के लिए आपके पास फोर्स लगना जरूरी 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 ही है। तो फोर्स से क्या क्या इफेक्ट हो सकती है? साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड इंक्रीज हो सकती है, स्पीड डिक्रीज हो सकती है, ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ सकता है। ये सारी चीजें आपके पास फोर्स से हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक बार पढ़ना आप। when a inflated balloon is pressed between the two hands, मतलब कि कोई गुब्बारा है हवा से भरा हुआ, उसको आप प्रेस करो तो उसका आकार या शेप और साइज बदल सकता है। when a spring is pulled its shape is changed, the shape of toothpaste tube changes on squeezing, अगर आप ट्यूब में से टूथपेस्ट निकालते हो तो फिर वो ट्यूब का भी शेप चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें फोर्स की इफेक्ट है। Force may be classified into two classes. One is contact force, another one is non-contact force, and we have already discussed about what is contact force and what is non-contact force. So आप एक बार यहाँ से देख लेना क्या है contact force, non-contact force. This is the main topic. Inertia. Inertia करके एक आपके पास टॉपिक आया। Inertia का मतलब क्या रहता है? इनर्शिया का मतलब रहता है कि वो एक जात की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की खुद की एक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? उस प्रॉपर्टी के हिसाब से वो अपने स्टेट को कंटिन्यू करता है। मतलब क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो वो हमेशा स्टेडी रहने की ही ट्राई करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन जारी रखने की कोशिश ही करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाता रहेगा। कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखेगा। और ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के पास उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का सीधा सीधा रिलेशन मास के साथ होता है। सपोज कि एक पतला इंसान और एक मोटा इंसान दोनों बैठे हुए हैं, दोनों स्टेडी है। आपको पतले इंसान को स्टेडी में से मोशन में लाना है और मोटे इंसान को स्टेडी में से मोशन में लाना है, रेस्ट में से मोशन में लाना है। तो आपको ज्यादा फोर्स किस में करना रहेगा? मोटे वाले इंसान के अंदर। क्यों? क्योंकि मोटे वाला इंसान का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, मतलब वो स्टेडी है तो स्टेडी रहने की ही ट्राई करता है। मतलब कि ज्यादा मास रहेगा तो इनर्शिया ज्यादा रहेगा, कम मास रहेगा तो इनर्शिया कम रहेगा। तो इनर्शिया का मतलब क्या है? वो एक टाइप की प्रॉपर्टी है बस। तीन टाइप के इनर्शिया रहते हैं, स्टैटिक इनर्शिया रहता है, मोशन इनर्शिया रहता है, डायरेक्शनल इनर्शिया रहता है। देखो, अ बॉडी डजंट चेंज ऑफ इट्स ओन, इट्स स्टेडी और द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो स्टेडी ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव रहेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी नॉट टू चेंज इट्स स्टेट, वो अपने स्टेट को छोड़ता नहीं है, वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। तीन टाइप के इनर्शिया रहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो स्टेडी रहने की ट्राई करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करने की ट्राई करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो वही डायरेक्शन में जाता रहेगा। तो ये सारे इनर्शिया तीन टाइप के रहते हैं। फिर ये आया बिगर द मास लार्जर द इनर्शिया। मास बड़ा तो इनर्शिया बड़ा। इनर्शिया मीन्स टू अपोज द चेंज, वो चेंज नहीं करता, वो स्टेडी है तो स्टेडी रहने की ट्राई करता है, मोशन में है तो मोशन में रहने की ट्राई करता है, उसको अपने में चेंज नहीं लाना है। ऐसी जो प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं इनर्शिया।
और ये इनर्शिया के बाद न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, as long as no net external force acts on the body, a stationary body remains stationary and a body in motion continues to move with constant velocity. न्यूटन ने क्या बोला अपने फर्स्ट लॉ के अंदर, जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक स्टेडी ऑब्जेक्ट स्टेडी रहेगा, मोशन वाला ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंटिन्यू वेलोसिटी से जारी रखेगा। ये लॉ था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसमें उन्होंने वर्ड यूज किए नो नेट फोर्स। नेट फोर्स का क्या मतलब है? सी नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन यहां से जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स यहां से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कुछ नहीं मिल रहा है। जितना यहां से है उतना यहां से आ गया, मतलब नेट जीरो हो गया। एज लॉन्ग एज देयर इज नो नेट फोर्स acts on the body, a stationary body remains stationary and a body in motion continues to move with constant velocity. तो यहां से आपको फोर्स की डेफिनेशन पता चलती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेडी है तो वो स्टेडी ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपनी मोशन जारी रहेगा। कब तक ऐसा होएगा? जब तक बाहर से कुछ लगेगा नहीं। बाहर से क्या नहीं लगेगा? बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। तो ये फोर्स आपको क्या देता है? ये फर्स्ट लॉ आपको क्या देता है? फोर्स की डेफिनेशन देता है कि कुछ लगना पड़ेगा। वो कुछ क्या है? वो कुछ है फोर्स। सो दिस लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स कम्स आउट टू बी द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन लगता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज आता है मतलब कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। फोर्स इज द क्वांटिटी बाय व्हिच द स्टेडी बॉडी कम्स इन मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ मोशनल बॉडी चेंजेस। कभी कभार डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। सो फोर्स की वजह से ही मोशन आती है। ठीक है, इसके बाद आप ये देखो इंटरप्रिटेशन। अगर आपको सिग्मा एफ का मतलब जीरो दिया है, मतलब कि नेट फोर्स जीरो है, तो आपको समझना क्या है? आपको समझना यह है कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब क्या समझना है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, या तो वो ऑब्जेक्ट स्थिर स्टेडी है। तो ये सारी चीजें आपको दी गई है। अब कुछ नई चीज आई, मोमेंटम। ये नई क्वांटिटी क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सो आंसर आया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप यहां पे ऊपर नीचे सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पूरा क्या हुआ? ये पूरा हुआ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप क्या बोलते हैं? आप न्यूटन बोलते हैं। सो न्यूटन इंटू सेकेंड। सो मोमेंटम के दो यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज न्यूटन इंटू सेकेंड। और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम रहता है। यह मोमेंटम डिफाइन क्यों करना पड़ा? आपके पास वेलोसिटी है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट नाम की क्वांटिटी है, आपके पास फोर्स नाम की क्वांटिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन नाम की क्वांटिटी है। ये सारी क्वांटिटी तो है ही, फिर आपको कुछ नई क्वांटिटी मोमेंटम क्यों डिफाइन करना पड़ा? उसका आंसर न्यूटन के सेकेंड लॉ में है। सपोज एक बड़ा सा हाथी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है, और उसी के साथ एक छोटा सा रेबिट, वो भी एक खरगोश, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है। आपको वो दोनों को स्टॉप करना है। देखो वेलोसिटी दोनों की सेम है,
हाथी भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, खरगोश भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। आपको उन दोनों को स्टॉप करना है ऐसे पुश करके। तो क्या लगता है आपको, किसको स्टॉप करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा? ऑब्वियसली हाथी को स्टॉप करने में आपको ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि हाथी का मास ज्यादा है। हेलो, वेलोसिटी सेम ही है, खरगोश भी 10 की स्पीड से आ रहा है, हाथी भी 10 की स्पीड से आ रहा है, लेकिन फिर भी हाथी को स्टॉप करने के लिए आपको ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, और खरगोश को स्टॉप करने के लिए कम फोर्स की जरूरत है। मतलब कि हाथी के पास सिर्फ वेलोसिटी है वो जरूरी नहीं है, हाथी का मास भी ज्यादा है। मतलब मास और वेलोसिटी उन दोनों से जो क्वांटिटी बनी वो है मोमेंटम। मतलब कि हाथी का इनिशियल मोमेंटम कुछ था, वहां से आपने उसका मोमेंटम जीरो किया। मतलब मोमेंटम चेंज होने के लिए जो कुछ भी अप्लाई करना पड़ता है वो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सपोज आपके पास एक नहीं दो सेम टाइप के हाथी है, ये हाथी का जितना मास है उतना मास ही दूसरे हाथी का है। पहले वाले हाथी को आपको यहां पे स्टॉप करना है और दूसरे वाले हाथी को आपको थोड़े दूर जाके स्टॉप करना है। तो अब आप सोचो, दोनों हाथी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही आ रहे हैं। अभी आप ये सोचो कि टाइम इंटरवल किसमें कम है। पहले वाले हाथी को जल्दी थोड़े अंतर के अंदर ही मेरे को स्टॉप कर देना है, दूसरे वाले हाथी को मेरे को आगे जाके स्टॉप करना है, तो फोर्स किस में ज्यादा लगेगा? स्वाभाविक है पहले वाले में ज्यादा लगेगा, क्योंकि मेरे को उसको तुरंत स्टॉप करना है। तुरंत स्टॉप करना है तो मेरे को फिर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो वाले हाथी को थोड़ा कम फोर्स लगाऊं तो चलेगा क्योंकि उसका टाइम इंटरवल बड़ा है। सो न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ के अंदर फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया। न्यूटन ने यह बताया कि कितना फोर्स लगेगा। पहले लॉ के अंदर न्यूटन ने डेफिनेशन दी कि कुछ लगाना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट के पास मोशन आएगी या तो ऑब्जेक्ट स्थिर होगा। वो कुछ क्या था? वो फोर्स था। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो डेफिनेशन देता है, न्यूटन का जो दूसरा लॉ है वो मैग्नीट्यूड देता है। कैसे मैग्नीट्यूड देता है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। सपोज ये इनर्शिया नहीं, मैं अभी बात कर रहा हूं न्यूटन के सेकेंड लॉ के बारे में। इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मतलब क्या? अगर आपके पास दो हाथी है तो पहले एम, सपोज कि आपके पास एक हाथी है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कुछ होगा, फाइनल मोमेंटम कुछ होगा। सो एम वी टू इज फाइनल मोमेंटम, एम वी वन इज इनिशियल मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। एम को कॉमन निकाल सकते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी, और ये वेलोसिटी में जितना चेंज है उसके डिवाइड में टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो m into a. So force is equal to m into a. Father is equal to ma. This is the equation that comes from the Newton's second law. हेलो, यहां से ये नहीं आया है, यहां से ये आया है। हेलो, the time rate of change of momentum is equal to the net force acted on that body. फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा? मोमेंटम का चेंज नीचे टाइम का चेंज, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मोमेंटम क्या रहता है? मोमेंटम रहता है मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपके पास यहां पे देखो सिर्फ मोमेंटम की बात थी तो सिर्फ मास इंटू वेलोसिटी,
मोमेंटम वाला एक क्वेश्चन भी दिया गया है, देखो अब यहाँ पे, फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास। मास दिया है, लेकिन मास किस में दिया है? 250 ग्राम। जनरली आपको आपके आंसर ऐसा यूनिट में देने रहते हैं, तो ग्राम नहीं, आपको करना पड़ेगा 2.50 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि 250 ग्राम का किलोग्राम कितना रहेगा? 10⁻³ किलोग्राम रहेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम रहता है। आपके पास 250 ग्राम है, आपके पास 250 ग्राम है, तो ये कितना रहेगा? तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 1000, सो आंसर आएगा 0.250 किलोग्राम। वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। जनरली आपको किलोमीटर में आंसर नहीं करना है, आपको करना है मीटर में। सो 1 किलोमीटर मतलब कितना? 1000 मीटर, और 1 घंटा मतलब कितना? 3600 सेकेंड। 0 0 कैंसल आउट, 18 4 जार 72, 18 2 जार 36, 2 5 जार 10, 5 4 जार 20। सो आंसर है यार 20 मीटर पर सेकेंड। आपको फाइंड करना है मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मास? इज 0.250 किलोग्राम। व्हाट इज वेलोसिटी? 220। ये दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। सो मोमेंटम का आंसर क्या आएगा? ये आएगा। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन कि भाई मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दी है, लेकिन कन्वर्जन नहीं दिया था, आपने कन्वर्ट किया, फिर आपने अपना आंसर लिखा। सर मेरे को तो बताया नहीं है कि आपको आंसर ऐसा यूनिट में देना है कि सीजीएस यूनिट में देना है। जनरली कुछ बोला नहीं गया हो तो तब आपको आपका आंसर ऐसा यूनिट में ही देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप 5 न्यूटन इंटू सेकेंड भी बोल सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड दिस चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या बताया न्यूटन ने? न्यूटन ने ये बताया है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मतलब कि P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी। P2 माइनस P1 मीन्स M इंटू V2 माइनस V1। हेलो, यहाँ पे नहीं, ये आप समझ लो। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मीन्स MV2 माइनस MV1 अपॉन डेल्टा टी। M को कॉमन निकाला, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी। इसको आप बोल सकते हैं एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। सो M इंटू A। So F is equal to M into A. This is the answer. This is the formula for force. So Newton's second law gives us the magnitude of force. Newton's first law gives us the definition of force. Right? ये देखो आप एक बार वापिस से वही सारी चीजें आपके पास आई कि भाई 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, उसका यूनिट ये होता है। फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। फोर्स से क्या क्या होता है? फोर्स से क्या क्या होता है? स्टेडी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, मोशन वाला ऑब्जेक्ट स्टेडी होता है। फिर क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकती है। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट है। ये क्वेश्चन देखो, देखो अभी थियरी क्लियर हो गई हमारी। अभी आपने जितना भी पढ़ा है उसको दिमाग में रखते हुए थोड़े बहुत आंसर देने हैं। अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन कार 2। किस केस के अंदर फोर्स का लगना जरूरी नहीं है? फोर्स 0 हो तो चलेगा। किसके अंदर फोर्स 0 हो तो चलेगा? अगर आपकी कार की स्पीड बढ़ानी हो, अगर स्पीड बढ़ानी हो तो फोर्स तो जरूरी है। डिक्रीज द मोमेंटम, अगर आपको उसका मोमेंटम डिक्रीज करना है, मोमेंटम डिक्रीज करना है मतलब क्या? उसकी वेलोसिटी तो कम करनी पड़ेगी आपको। हेलो, तो मोमेंटम डिक्रीज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार है, कार फिक्स है, तो आप अपने कार का मास कम नहीं कर सकते।
मास कम नहीं कर सकते तो आपको मोमेंटम कैसे डिक्रीज करना है? तब आपको उसकी स्पीड घटा के ही मोमेंटम डिक्रीज करना है, और स्पीड घटाने के लिए तो फोर्स चाहिए। मतलब कि यहां पे भी फोर्स चाहिए, यहां पे भी फोर्स चाहिए। चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करनी हो तो भी फोर्स चाहिए। कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी कार को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाना हो, मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी? एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? फोर्स जीरो होगा। तो यस, आंसर डी इज करेक्ट। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार को ले जाना हो तब आपको किसी भी प्रकार के फोर्स की जरूरत नहीं रहती है। An object will continue accelerating until, आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग मीन्स व्हाट? उसकी स्पीड सतत बढ़ रही है। कंटिन्यूअसली स्पीड इज इंक्रीजिंग मीन्स द बॉडी इज डूइंग एक्सेलरेटिंग मोशन। तो कंटिन्यू स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यू स्पीड बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यू फोर्स देता रहना पड़ेगा, और वो फोर्स इंक्रीज करता रहना पड़ेगा। The resultant force on it begins to decrease. अगर आप फोर्स डिक्रीज करोगे तो स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, तब वो एक्सेलरेटिंग मोशन थोड़ी करेगा, वो रिटार्डिंग मोशन करेगा। The resultant force on it increased continuously. Yes, that is correct. The resultant force is at right angle to its motion. नहीं, अगर right angle पे फोर्स लग रहा है तो उससे तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और डायरेक्शन चेंज होने से वो एक्सेलरेटिंग मोशन करता है ऐसा मालूम नहीं होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो आप ऐसा थोड़ी बोल सकते कि वो एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है, वो स्टेडी होगा, या तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। सो आंसर बी इज करेक्ट। ये देखो आप, a body whose momentum is constant must have constant, momentum constant है। momentum means क्या? mass into velocity। बॉडी है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, क्योंकि आपने बॉडी सिलेक्ट कर लिया कि ये बॉडी के बारे में मैं बात करता हूं। अगर बॉडी सिलेक्ट कर रहे हो तो आप उसका मास फिक्स समझ रहे हो, फिर उसका मोमेंटम कांस्टेंट कैसे होगा? अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो। सो आंसर बी, वेलोसिटी इज देयर। न्यूटन्स सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ, न्यूटन का सेकेंड लॉ किसका मैग्नीट्यूड देता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, वहां से ही आया। ये देखो आप, अ फोर्स प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम। मीन्स कि मास दिया हुआ है। फर्स्ट बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं पहले, तो फर्स्ट बॉडी मीन्स m1 कितना दिया है? 3 किलोग्राम। उसका एक्सेलरेशन भी दिया है, कितना दिया है एक्सेलरेशन पहले वाले का? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पहले बॉडी का कितना मास है वो दिया है, अगर पहले बॉडी का कितना एक्सेलरेशन वो दिया है, तो आपको ये मालूम तो पड़ ही सकता है ना कि पहले बॉडी का फोर्स कितना है। फोर्स होगा m1 इंटू a1, मास इंटू एक्सेलरेशन मीन्स 3 इंटू 0.5, सो 5 अपॉन 10, 15 अपॉन 10, सो 1.5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। फिर क्या बोला? इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन सेकेंड बॉडी, अभी आपके पास कुछ सेकेंड बॉडी है आपके पास, तो वो सेकेंड बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा? सेम, सेम मतलब इसके जितना है, तो कितना लगेगा? 1.5 न्यूटन ही लगेगा। और वो सेकेंड बॉडी का मास कितना है? सेकेंड बॉडी का मास है 1.5 किलोग्राम। आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन कितना होगा, a2 कितना होगा। तो सेम F इज इक्वल टू m2 इंटू a2 कर सकते हो आप। फोर्स दिया है, मास दिया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है? फोर्स है 1.5 न्यूटन, अपॉन मास क्या है? 1.5 न्यूटन। सो आंसर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो, 1.5 न्यूटन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1.5 किलोग्राम। आंसर क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो, न्यूटन मीन्स क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे किलोग्राम है ना,
तो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे आंसर आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके भी दिया है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको दिमाग कैसे लगाना है। तो पहले वाले से फोर्स फाइंड कर लिया, फिर फोर्स तो मिल गया, बॉडी का मास दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन भी दूसरे बॉडी का मिल गया। सो ऐसे सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं आपके फाउंडेशन के अंदर। 11th-12th साइंस में आओगे तब आपको इसके आगे थोड़ा थोड़ा और सिखाएंगे, इतना हार्ड नहीं है। आज के लेक्चर के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। ये रहा आपका होमवर्क, थियरी टॉपिक 2.15 to 2.22 सॉल्व प्रॉब्लम 1 और लेवल 1 CTP लेवल 1 142 143। हेलो 142 143 है। कोई कोई तो ये बोलेगा सर मैंने सिर्फ 140 किया फिर 143 वाला किया, क्योंकि मेरे को ये लगा कि यहाँ पे ऐसे कॉमा है, कॉमा नहीं है। 142 143 मीन्स 140 भी करना है, 141 भी करना है, 142 भी करना है, 143 भी करना है। ठीक है, so that's it from today's lecture. In our next lecture we will learn some another theory topics and solve the remaining application related with this formula. So that's it from today's lecture. Jai Hind, Jai Bharat, Astu. Thank you.